हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन cilia and flagella. Both cilia and flagella have same chemical composition and internal structure or ultrastructure, but they vary in certain aspects like the number, their length, position, functions, and nature of beating or nature of movement, types of movement, and types of cilia and flagella. Cilia and flagella both arise from basal body or basal granule. Basal body or basal granule, also known as kinetosome or blepharoplast. And cilia and flagella present on the surface of the organism, on the surface of the cell, and they mainly help in movement and locomotion of the organism. organism के movement and locomotion में help करता है cilia and flagella mainly, but cilia also involve in food capturing and in sensation process. That means cilia is sensory in nature also. Clear? Cilia and flagella both are minute, microscopic, hair-like structure. Clear? See, cilia present in protozoan protist like the paramecium. पूरे पैरामीशियम के बॉडी पे cilia present होता है. And cilia help in movement and locomotion and capturing of food in paramecium. Paramecium, that is the sleeper animalcule, क्योंकि इसका जो शेप है वो स्लीपर लाइक होता है. Cilia also present in flame cells that present in platyhelminthes, tapeworm, and flame cell help in osmoregulation and excretion process. Cilia also present in trochophore larva of Nereis and bipinnaria larva of starfish. Clear? Cilia also present in fallopian tube, that is the oviduct, kidney tubules, nephrons, and trachea, that is the windpipe. Okay. Flagella present in flagellated protist like the dinoflagellates के केस में present होता है. Euglenoids, that is the euglena, that we consider connecting link between plant and animal. Euglena, plant एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, वहां पे भी दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजला आल्सो प्रेजेंट इन जू स्पोर्स ऑफ एल्गी और स्पर्मेटोजोआ ऑफ सर्टेन एनिमल्स. फ्लैजला absent in arthropods, angiosperms. Clear? See certain difference between cilia and flagella. First, number of cilia per cell, many here in thousands. Clear? हजारों में संख्या होती है cilia की on the body surface of the organism, on the surface of the cell. And the number of flagella per cell per organism, it may be one or it may be two. एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है. Or in some cases few flagella present. कुछ केसेस में दो से ज्यादा भी flagella present होते हैं. So the number of flagella may be one or may be two or few. See the length, that is the size of cilia and flagella. Cilia is smaller in size, that is approx 5 to 10 micrometer. 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ का ही cilia होता है, and that is the comparatively smaller in size. फ्लैजला कंपैरेटिवली लॉन्गर इन साइज, लंबा होता है, बड़ा होता है, अप्रॉक्स 150 माइक्रोमीटर इन लेंथ. क्लियर? नेक्स्ट, सी पोजीशन और लोकेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो जो सीलिया है वो ऑल ओवर द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे. एज वी कैन सी इन केस ऑफ पैरामीशियम के केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो सीलिया है वो पूरे बॉडी को कवर किए हुए है. क्लियर? सो सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की पूरे बॉडी पे. एंड फ्लैजला
जनरली प्रेजेंट एट एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी, बॉडी के एंटेरियर एंड पे जनरली प्रेजेंट होता है फ्लैजला। क्लियर? इफ द नंबर ऑफ फ्लैजला मोर देन इट मे प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी आल्सो। क्लियर? नेक्स्ट वी सी द फंक्शन ऑफ cilia and flagella. Cilia परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में, और सीलिया सेंसरी इन नेचर भी होता है। क्लियर? दैट मीन इट सेंस द एक्सटर्नल चेंज in its environment, in its medium. So cilia are helpful in movement and locomotion, food capturing and sensory in nature. Flagella mainly helps in movement and locomotion. जो flagella है वो mainly organism के movement and locomotion में help करता है. And both cilia and flagella both provide mechanical support to the organism also. Clear? So they vary to their functions. Next we see beating or movement nature of the cilia and flagella. Cilia show synchronous type of movement and metachronous type of movement. Synchronous type of movement का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रो, जो लॉन्गिट्यूडनल रो पे, वर्टिकल रो पे जो सीलिया होती है, जब उनका मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस टाइप ऑफ मूवमेंट। एंड ऑल द सीलिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रो बीट आर मूव इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर, एक साथ सभी सीलिया क्या करेंगी? बीट करेंगी इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। और मेटाक्रोनस का मतलब है ऑल द सीलिया ऑफ ट्रांसवर्स रो मूव इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर, एक साथ एक कोऑर्डिनेशन मैनर में ट्रांसफर रो की जब सीलिया मूव करती हैं, बीट करती हैं, तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं मेटाक्रोनस टाइप मूवमेंट। सो सीलिया परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दैट इज द सिंक्रोनस टाइप एंड मेटाक्रोनस टाइप। सिंक्रोनस टाइप का मतलब है सीलिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रो मूव इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर, एंड मेटाक्रोनस का मतलब है सीलिया ऑफ ट्रांसवर्स रो मूव इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। फ्लैजला मूव्स इंडिपेंडेंट, दैट इज सपोज बॉडी के एंटेरियर एंड पे एक फ्लैजला है और पोस्टेरियर एंड पे एक फ्लैजला है, तो एंटेरियर एंड का फ्लैजला मूव कर सकता है और सेम टाइम पोस्टेरियर एंड का फ्लैजला मूव नहीं करता। क्लियर? तो जो मूवमेंट है फ्लैजला में वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर? इंडिविजुअली दे कैन मूव। नेक्स्ट सी टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट, सीलिया शो रोविंग मूवमेंट, रोविंग टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट वी से पेंडुलेटरी मूवमेंट। और पेंडुलेटरी मूवमेंट का क्या मतलब है? स्वीपिंग मूवमेंट। स्वीपिंग मूवमेंट का मतलब है जब हम ब्रूम लेते हैं, झाड़ू लेते हैं, तो उसमें जितने भी फाइबर्स हैं वो झाड़ू लगाते समय एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है सीलिया में तो उसको हम बोलते हैं रोविंग मूवमेंट और पेंडुलेटरी मूवमेंट। दैट मीन ऑल द सीलिया बीट मूव इन अ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर सभी सीलिया एक साथ मूव कर रहा है तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं हम रोविंग मूवमेंट या पेंडुलेटरी मूवमेंट, दैट मीन स्वीपिंग टाइप का मूवमेंट। क्लियर? और स्वीपिंग टाइप के मूवमेंट में या पेंडुलेटरी टाइप के मूवमेंट में दो तरह का एक्शन होता है, पहला पावर स्ट्रोक और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। एक पावर स्ट्रोक होगा, फिर उसके बाद दूसरा रिकवरी स्ट्रोक, देन पावर स्ट्रोक, देन रिकवरी स्ट्रोक। इसका क्या मतलब है? जैसे जब हम स्विम करते हैं पानी में, तो क्या करते हैं? पानी को हम इस तरह से पुश करते हैं, और जब हम पानी को पुश करते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो पानी को हम पुश कर रहे हैं, जो हम मूवमेंट ऑफ हैंड कर रहे हैं, ये क्या है? ये पावर स्ट्रोक है, दैट इज द पावर स्ट्रोक। और जब हम इस तरह से फिर से हाथ को लाते हैं अपने, फिर से हम पानी को मूव करते हैं, तो ये जो हम कर रहे हैं दिस वन ऑन डिफरेंट एंगल, तो ये क्या है? रिकवरी स्ट्रोक है। तो इस तरह से पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक होता है कहां पे? पेंडुलेटरी मूवमेंट या स्वीपिंग मूवमेंट या रोविंग मूवमेंट में। क्लियर? तो इस तरह से जो सीलिया है वो मूव करता है। क्लियर?
इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर, एक साथ सभी सिलिया एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो फ्लैजला का मूवमेंट है वो अनड्यूलेटरी मूवमेंट है या वेव लाइक मूवमेंट है। वेव लाइक मूवमेंट का क्या मतलब है, जैसे अगर हम एक थ्रेड ले और उसको इस तरह से वाइब्रेट करें तो वो क्या करेगा, थ्रेड वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। क्लियर? तो वेव लाइक मूवमेंट का मतलब होता है अंडुलेटरी मूवमेंट। तो अंडुलेटरी मूवमेंट या वेव लाइक मूवमेंट प्रेजेंट होता है फ्लैजला में, और रोविंग मूवमेंट या पेंडुलेटरी टाइप का मूवमेंट प्रेजेंट होता है सिलिया में। क्लियर? नेक्स्ट वी सी टाइप्स ऑफ सिलिया। सिलिया दो तरह का होता है, एक तो काइनोसिलिया, और काइनोसिलिया कैसा होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल होता है काइनोसिलिया। जैसे कि सिलिया प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, और ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जो सिलिया प्रेजेंट होता है वो ओवम को या एग सेल को आगे की तरफ पुश करता है, आगे की तरफ कंडक्ट करता है, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट को आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स में सिलिया प्रेजेंट है, दैट इज द मोटाइल टाइप ऑफ सिलिया। ट्रैकिया में प्रेजेंट है, दैट इज द विंड पाइप में। क्लियर? तो ये काइनोसिलिया जो होता है वो मोटाइल नेचर का सिलिया है, एंड दे आर प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स एंड ट्रैकिया, विंड पाइप। और जो दूसरा तरह का सिलिया है दैट इज द स्टेरियोसिलिया। स्टेरियोसिलिया नॉन मोटाइल नेचर का होता है, ये मूव नहीं करता है, बट दे आर सेंसरी इन नेचर, दे कैन सेंस द स्टिमुलस एंड कैन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू देम। जो सेंसरी सिलिया है उसको बोलते हैं हम क्या, स्टेरियोसिलिया। ये नॉन मोटाइल होता है और ये स्टिमुलस को सेंस करता है। जैसे कि एग्जांपल गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर का मतलब जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है हमारे टंग पे, उनमें जो सिलिया है वो स्टेरियोसिलिया है, ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर? सो दैट इज टू टाइप ऑफ सिलिया, वन इज द काइनोसिलिया, मोटाइल सिलिया, एंड स्टेरियोसिलिया दैट इज द नॉन मोटाइल सिलिया। Cainocelia present in fallopian tube, oviduct, kidney tubules, nephron and trachea, and stereocilia present in gustatory receptors, that is the taste buds में, and they are sensory in nature. They receive the stimulus and response according to the stimulus. See here, flagella is also two types. Flagella भी दो तरह के होते हैं, whiplash flagella और टिंसेल टाइप का फ्लैजला। तो जो व्हिपलैश फ्लैजला है वो हंटर टाइप होता है, हंटर लाइक फ्लैजला होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से फ्लैजला होता है। एंटेरियर जो इंड है वो कैसा होता है, टेपरिंग हो जाता, एंटेरियर कैसा होता है, टेपरिंग हो जाता है, और ये जहां से बेस है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है। तो इस तरह का अगर फ्लैजला है तो इसको बोलेंगे हम क्या, व्हिपलैश टाइप ऑफ फ्लैजला, हंटर टाइप, हंटर लाइक फ्लैजला। और जो टिंसेल टाइप का फ्लैजला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दिस इज लाइक, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इस तरह से। इसको बोलते हैं हम टिंसेल टाइप ऑफ फ्लैजला। ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो टिंसेल टाइप का फ्लैजला है, और अगर हंटर लाइक है इस तरह से है, आगे का हिस्सा पतला नैरोवर, और जो बेस का है वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, तो ये व्हिपलैश टाइप का फ्लैजला होता है। क्लियर? सी, so cilia and flagella differ in all these aspects, but their chemical composition and structure similar. अगर हम फ्लैजला ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और फ्लैजला ऑफ यूकैरियोटिक सेल का कंपेयर करें तो जो फ्लैजला प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो मेनली फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? और जो फ्लैजला है यूकैरियोटिक सेल में वो मेनली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है। फ्लैजला प्रोकैरियोटिक सेल नैरो होता है और शॉर्ट होता है, फ्लैजला ऑफ यूकैरियोटिक सेल लॉन्गर होता है और थिक होता है, और इनके नेचर ऑफ मूवमेंट में भी डिफरेंस होता है। क्लियर? जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजला है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजला है वो
आगे और पीछे करके, ठीक है, बैकवर्ड फोर्थवर्ड मूवमेंट करता है. क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक flagella. So I request to all of you, please subscribe my channel and like, share, comment the videos.